role, in domestic violence, eradication of domestic violence. So I suggested one Minister of Women and Child last time that if this law is be given, the custody to the State Commission for Women, because it's already a chairperson and members also, and there should be a protection officer with two protection officers at the center level, then there should be a protection officer at district level, so that ultimately the magistrate should also be appointed in the State Commission for Women, so that they will settle down the cases. Otherwise, I have seen it's really so difficult to get this law. What I have seen the same situation. What is not different from your situation. What I am going to face, I think so same situation, because nobody is taking women's issues very seriously. Thank you so much. And regarding police, I just want to tell you, last month we organized one program, Women in Conflict Zones, and I just straight away went to DGP, Director General of Police, Mr. Khuda. I said, I want you to be with us to inaugurate the program. He said, how come? I said, no, you have to come. And he came. And now, he is so helpful to us. I think every state can do also that. He issued a circular to all the police stations and SSPs, SPs, that whenever a case comes from the commission, to have the presence of the accused, you please do that. And the circular has been issued, and we are getting a lot of help from them. We do the sensitization of judges, we do the sensitization of media, and we do the sensitization of the officers who are working in the state government at very high level. So I think if we have, goodwill of police also, they are very helpful to us. Thank you so much more. So I just want to tell you, if I have any problem in, we have already framed that, framing the law, and need your suggestions. I have some emails. Kindly help me. I will be sending the mail, and I will just put my draft bill on the mail, and kindly see if it is correct and what measures we shall take, so that this law will come, as a very, very good law, and a very strong law. Thank you so much. We now keep the floor open for discussion. किसी को कुछ डाउट्स मॉडरेटर से पूछना है या किसी को कुछ बताना है? यस, हाँ. मैं सुगंधी महाराष्ट्र फ्रॉम बॉम्बे से हूँ, जनवादी महिला संगठन से. मुझे पहले सवाल हमारे दो साथी जो एसपी शर्मा और अपने जो राजस्थान के भाई कुलदीप सिंह, ऐसे है कि हम शर्मा मैडम ने कहा कि उनका बहुत अच्छा, जिस तरह से वो आज हमारे साथ बैठी हुई है, ऐसे बहुत कम हमारे अनुभव हैं. बाकी मेरे साथियों ने भी बताया, हम हर दिन जो अलग अलग केसेस में या खास करके महिलाओं के सवाल पे कोई भी हो, जब जाते हैं तो हमारा एक बहुत बुरा अनुभव है हमारे अनुभव से, कि हमें हर समय उनके साथ लड़ाई लड़के और उनको हर कानून बताना पड़ता है कि इस पे ये कानून है, इस पे ये कानून है, इस पे ये चीज है. हमको उनको कानून बताना पड़ता है. ये हमारा दुर्भाग्य है. ये हम आपसे कहेंगे. आप जो कह रहे हैं वैसे और भी लोग हमारे साथ अगर पुलिस वाले सहकार्य करें तो जरूर मदद हो सकती है, ऐसा हम सोचते हैं. कुलदीप भाई से मैं ये कहूंगी कि आप कहते हैं कि हम काउंसलिंग करना चाहिए, उन्हें समझा बुझा के उनका परिवार को जुटाना चाहिए. आप ये समझ लीजिएगा, जो यहाँ पे लॉयर्स बैठे हैं, यहाँ अलग अलग संस्थाएं हैं. शायद सबसे पहले हम महिलाओं के जो काउंसलिंग सेंटर में उन्हें बुला करके उनके साथ बात करने के बाद नहीं होता है, नहीं पड़ता है, तो ही हमें उन्हें केस की तरफ जाने की बात कहते हैं. इसलिए ये अगर किसी की समझ हो कि जैसे भी वो अलग दुकान खोले हुए होते, जैसे बताया गया कि रेट होता है, वो अलग होंगे, शायद इसमें से कोई नहीं होगा. जो भी होता है, पहले उनका घर बसाना, उनके साथ काउंसलिंग करना, उन्हें फिर से अपने घरों में जाने के लिए. हालांकि कभी कभी ये भी हमारे सामने में गलतियां आती कि हम देखते हैं कि उसमें एक आध जगह औरत की भी गलती है, महिला की, लेकिन हम उसे समझा बुझा के उस औरत को कैसे फायदा मिल सके, उस महिला को उस घर में कैसे रखा जा सके, इसकी हमारी कोशिश रहती है. और नहीं होता है तो उसे हम कोर्ट का रास्ता बताते हैं और उसे कोर्ट में भेजा जाता है. ये मेरी आपके साथ में की गलतफहमी को खत्म, मुझे जो लगा वो मैं आपके साथ में रख.
मैं यहाँ पर महाराष्ट्र के तरफ से बोलूंगी। हमारे बहुत सारे साथी वकील साथियों ने यहाँ पे बात की, लेकिन मुझे कुछ बातें इस तरह से कहनी है कि ये हमारा पूरा जो डीबी एक्ट को किस तरह से हमें पूरे महाराष्ट्र का जो हमारा एक सवाल बहुत बड़े पैमाने पे आज यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र बम्बई और महाराष्ट्र के बहुत अलग अलग संस्थाएं जो खास सिर्फ डीबी एक्ट पे ही उनका एक प्रोजेक्ट काम करते हैं, वो नहीं आए हैं। वो अलग अलग कारण हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा पिछले 1 साल से बहुत सारी संस्थाएं हैं कि जो डीबी एक्ट को अमल लाने में काम कर रहे हैं। हमने एक पत्रक निकाला, 20,000 हमने ट्रेनों में बांटा, हमने ये बांटा वो बांटा, कुछ बातें हुई थी हमारे की पुलिस के साथ में। जो हमारा मेन यहाँ पे सवाल आ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ने थोड़ा सा बजट रखा, लेकिन बजट इतना बड़ा नहीं है कि जो आज हमारे जो संरक्षण अधिकारी हो या फिर जो हमारे सर्विस प्रदाता मदद करने वाले हो, उनकी अभी तक कोई भी व्याख्या हमारे सामने बराबर नहीं दिख रही है। आपको मैं बंबई का मुद्दा बता, बंबई में सिर्फ एक पुलिस, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर एक है, वो कभी बैठता है और कभी वो जाता है चेंबूर में। आप समझ लीजिए कि ये हमारी हालात है। मतलब ये महाराष्ट्र सरकार ने कैसे इसको ज्यादा ऑफिसर्स बनाना, ज्यादा ऑफिस रखना, उसके लिए पूरा समय का एक ऑफिसर होना, क्योंकि जो ये ऑफिसर बैठा है ये जिला अधिकारी होता है, कलेक्टर का ऑफिस होता है, ये वो भी ऑफिस देखेगा और महिलाओं का केसेस भी देखेगा। ये मैं सिर्फ एक उदाहरण बोली कि महाराष्ट्र में खास करके जहां पर आज हम और आप बैठे हैं, यहाँ पर भी महाराष्ट्र में और बंबई में खास करके बिल्कुल कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं। इसलिए हम संस्थाएं बहुत अलग अलग तरह से ऐसे केसेस को करते हैं। मुझे दुख इस बात की होती है कि हम पूरी महिलाओं को जो भी तकलीफ से आती है उसको हम मदद नहीं दे पाते, ऐसा मुझे महसूस होता है मेरी संगठन को। इस इशू की तरफ ध्यान नहीं गया, सिर्फ मैं वो बताना चाहती हूँ ओनली 2 मिनट में, क्योंकि 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसे बहुत से केसेस मैंने किया है। तो मैं खुद महिला हूँ, महिला के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस जो है, तो हिंसाचार कौन हिंसा कर रहा है उसका ये भी समझना जरूरी है, जो हम एक्टिविस्ट जुड़े हैं उससे। तो जैसे एक सिर्फ उदाहरण बताती चाहती, जैसे बहू घर में आती है, सबसे पहला प्रॉब्लम दहेज का होता है, उससे कौटुंबिक हिंसाचार चालू हो जाता है। अगर उस समय मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने कहा कि नहीं अब वो हमारे घर की मेंबर है, इसके बाद ये प्रॉब्लम स्टॉप, तो वो हो सकता है हिंसाचार वहीं स्टॉप हो जाए। तो इसलिए ये मैं बताना चाहूंगी कि अगर ऐसी हमारी महिलाओं में ऐसी मानसिकता आए तो 60% केसेस ये बंद नहीं आएंगे आगे। और दूसरी बात कि जो महिला खुद को अस्थिर समझ रही है, अनस्टेबल, इसलिए उसके दिल में जो हैट्रेड है, मैलिस, ये जो करप्ट एलिमेंट्स है, ये इसलिए आते हैं। अगर उसको स्टेबिलिटी दी जाए घर घर में कि कोई लड़का लड़की में भेद नहीं है, ये तो लड़की भी उतनी हमारे लिए जरूरी है, तो वो खुद को स्टेबल समझेंगी और वो ऐसे काम नहीं करेंगी। तो ऐसे से अगर मानसिकता स्त्री की, दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट जो मानसिक हो जाए, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत तरीके से क्योर हो सकता है। बस मैं इतना यहाँ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस आगे जाके क्या नहीं हो सकता, हिंसा कम हो सकती है, ये बात तो है ही इम्पोर्टेंस, लेकिन ये भी बात पहले अपने को प्रायोरिटी बेसिस पे देखना है कि जो हिंसा है उसमें अपन महिलाओं का बचाव कैसे कर सकते हैं। ये तो अगले जनरेशन की बात है। ओके नहीं, और ये बात पहले भी क्लियर हुई थी कि एक्ट कहीं पे खाली डॉटर इन लॉ के ही मुश्किलों को नहीं एड्रेस कर रहा है। वो औरत एक फैमिली में किसी भी रिलेशनशिप में हो, वो उसको वो बेसिकली वो ये कह रहा है कि वायलेंस फ्री एटमॉस्फेयर में उसको पलने बढ़ने का एक मौका दिया जाए। राइट? ओके। मैं प्रज्ञा राजस्थान से हूँ, विशाखा संस्था में एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ। और मेरे एक दिल को छूने वाली बात यह है कि जब हम काउंसलिंग में और बातचीत में समाज में जाते हैं तो ये होता है एनजीओ वाले हैं, ये तो घर तोड़ेंगे। और यहाँ पे भी 2 दिन में यही बात हो रही है। हमारे साथ एडवोकेट्स हैं, पुलिस है और हम सारे एनजीओ वाले हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी 2 दिन से लगातार मुझे लग रही है कि घर जोड़ना है और घर तोड़ना है। हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है कि घर जोड़ना है या घर तोड़ना है, हम भी घर जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उस शर्त पर कि उस महिला को उसके परिवार में उसको इज्जत के साथ रखा जाए। हम तोड़ने की बात कभी नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये चीज। दूसरी चीज,
हम सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इतना महिला के लिए करते हैं, हम उतना महिला के लिए करते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक दूसरे पे प्रत्यारोप कर रहे हैं कि तुम्हारी ये कमी है, हमारी ये कमी है। तो वो चीज छोड़ते हैं, हम इतने लोग हैं अब अपने वापस से जा रहे हैं, तो वो चीज मुझे लगता है डिफिकल्टी है। I have three such short suggestions. First one is that most of us here are from different organizations and having different kinds of experiences, some may be positive and some negative. So if we have some kind of a group, an email group or somewhere where we can get this kind of feedback as to how the experiences have been, so we can use it in our cases positively. Whatever it is, the positive or the negative, then we can use it. So a kind of, say for instance, Vishaka is there and HRLN, Majlis, all together, we all form one group where we get the Yahoo group or Google or whatever. So that is one suggestion I have. And the other one is about the DIR. DIR, if we together are able to form guidelines on which this can work. HRLN can take that up. Actually, I heard that another organization is doing that, but then instead of them alone doing it, if HRLN with your kind of expertise also join, it would be better. And the third one is that in case you have another consultation or something, it should be more in depth. Rather than once this is done, the second or the follow-up consultation should address specific issues. If you have that, then it will be more meaningful. मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कल से हम ज्यादातर शादीशुदा औरतों की प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज ज्यादा लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं और उनकी जब उम्र, तो ये होता है उनको भी बहुत सब अत्याचार घर में सहने पड़ रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट विद इन द फैमिली इज ऑल्सो वेरी मच एंड वी हैव नॉट डिस्कस दैट मच। मैं तंजीम कर्नाटक से हूँ। आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं 2-3 बात कहना चाहूंगी इस डीवी एक्ट से। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कल से यहाँ पर सब ठीक हुआ, अच्छा हुआ, इस तरह के बात करें। मैं बस लंच के टाइम में शीला मैडम से डिस्कस कर रही थी और आपके सामने भी रखना चाह रही हूँ, शायद आप लोगों के साथ भी होगा। सिर्फ मुझे चाइल्ड कस्टडी के बारे में है। ये डीवी एक्ट इसलिए आया कि 498 केस करने के बाद कन्विक्शन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, सालों सालों चलता है और मर्द दूसरी शादी करके बच्चे पैदा करके ये औरत फुटपाथ पे रही थी। उसके अलावा फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए जब औरत फैमिली कोर्ट स्टार्ट हुआ तो 7 साल चप्पल फट जाएंगे पर उसे मेंटेनेंस नहीं मिल। ये 2 चीजों के मद्देनजर रखते हुए हमने डीवी एक्ट स्टार्ट किया ताकि जल्दी रिलीफ मिले। इसके इसमें सिर्फ मुझे चाइल्ड कस्टडी से प्रॉब्लम है, जो हाई कोर्ट से प्रॉब्लम। जब लोअर कोर्ट में बच्चे की कस्टडी माँ को जाती है तो बच्चे उसके पास रहते हैं, 1.5-2 साल तक बच्चे पास रहते हैं, माँ को पहचानने से इनकार करते हैं क्योंकि इतने साल का गैप हो जाता है। जब बच्चे को कस्टडी लोअर कोर्ट में मिल जाती है तो आदमी हस्बैंड की फैमिली सेशन कोर्ट में, जब सेशन कोर्ट में भी पास हो जाता है कि बच्चे की कस्टडी माँ को देना, तो आदमी जाकर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेता है। तो हाई कोर्ट के जज को पता होना है कि जब दो कोर्ट में जज बुद्धू तो नहीं है, जो हमारे लॉयर्स इतनी मेहनत और मुशक्कत के साथ जब कस्टडी लेते तो हाई कोर्ट को क्या